Okay, we did this question. First, we found out we use the first law for the first path. इस path के लिए heat supplied and work done was given. Change of heat energy was calculated 30. That will be valid for the second path also, because initial and final conditions remaining same. Change of heat energy is independent of the path. We have used the first law for the second path. Use the 30 calorie here. We got the answer 6 calorie. Or if options are given in joule, you have to multiply by 4.2. Now, I was asking the question whether, okay, Cp and Cv, they are the molar specific heat, all right? But if they have given you Cp for 1 gram, I mean, if it is written specific heat, then what is the meaning of this? Specific heat is not certainly the molar specific heat. This is for 1 gram, you know. This is for 1 gram. So what will be the molar specific heat at constant pressure? You have to change your symbol. Cp dash for number of moles. For example, if it is hydrogen, so it will be 2 moles. So 2 Cp हो जाएगा. 1 gram के लिए 1 है, 2 gram के लिए 2 Cp. If it is oxygen, it will be 32, like this. So they have the tendency to twist the question. In place, Cp is for molar specific heat, but they change it for the specific heat. Then you have to change your symbol itself. You will write like this: Cp is equal to R. Because if you write Cp minus Cv is equal to R, so it is not valid, because they have changed. They have given it specific heat, but these are valid for molar specific heat. Things are clear. You have to be very careful in this question, and this is also called Mayer's relation. Okay, so derivation is important for your subjective paper. For example, if we take this question, so Cp and Cv denotes the specific heats of the nitrogen per unit mass. Now, for 1 gram or for 1 kg है ना, तो मोलर मास में ग्राम में लेते हैं, यहाँ पे 1 ग्राम में लेंगे. तो Cp is, which of the following options is correct? बोलो. Is it okay? D is okay. अभी हमने derive किया, or something is wrong with the D? See, D is not all right, because Cp and Cv should be molar specific heat, not the specific heats for unit mass. They don't have to write unit mass. If this much is enough, it is already for unit mass specific heats. So we have to find the molar specific heat. So molar specific heat क्या होगा? For 1 mole. Cp dash ले लेंगे. नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना होता है? 28 ग्राम. And since Cp is for 1 gram, तो 28 से मल्टीप्लाएंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगी. And similarly Cv dash 28 Cv. Now we can write Cp dash minus Cv dash is equal to R. Put the value 28 Cp, 28 Cv is equal to R. Therefore, Cp minus Cv is equal to R by 28. This is the question for competition point of view, but वैसे भी you should know these all points. So this was for unit mass, and relation is for unit mole. ठीक है, ये 1 ग्राम के लिए है. Cp given unit mass के लिए 28 ग्राम. या unit mass u में से kg, this is for 1 kg, और molar mass में फिर उसको हम, of course molar mass में ग्राम में ही लिखा जाता है, बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो this has to be 1 gram and this is 28 gram is 1 molar mass. नाइट्रोजन के लिए, if it is hydrogen then it will be 2. ऑक्सीजन होगा तो 32 हो जाएगा, because they are diatomic gases है ना.
नाइट्रोजन का 14 और दूसरा भी 14, इट मेक्स डायटोमिक गैस 28 हो जाएगा। मास नंबर 14 है उसका। Now, other relation between Cp and Cv. Yesterday we have seen Cp minus Cv is equal to R. One more relation is there. Their ratio is constant. Ratio is equal to gamma. We call it gamma. It looks like Y, but it is not Y. It is gamma like this. Gamma, and it is also called adiabatic index because we use it there in the adiabatic process. It will be constant for different type of gases. मोनोटॉमिक के लिए डिफरेंट होगा, डायटोमिक के लिए डिफरेंट होगा, पॉलीटॉमिक के लिए डिफरेंट होगा. So we have the two relation between Cp and Cv. One was there, another is this. And if I ask you prove that Cv is equal to R upon gamma minus 1, can we do it? Yes. How to do it? Using the first law of thermodynamics from FLT Cp minus, from Mayer's relation we call it. From Cp minus Cv is equal to R, and also Cp by Cv is equal to gamma. तो यहाँ से हमें Cp मिल जाएगा gamma times of Cv. Cp is gamma times of Cv. Put it here. Therefore, okay, gamma times of Cv it is. Cross multiplication. Put it here in the above relation, Mayer's relation. Gamma times of Cv minus Cv is equal to R. Cv common ले लिया. Gamma minus 1 is equal to R. So Cv is R upon gamma minus 1. So this sometimes we use it, provided gamma should be known. So we can find out Cv. Molar specific heat can be found out by. और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो Cv मिल जाएगा गामा टाइम्स ऑफ Cp मिल जाएगा. Cp will be gamma times of Cv. So this can be question itself, and multiple option का question भी हो सकता है, and we need it in the numericals problem also. R is the universal gas constant, you know that. Huh? Comfortable? What about this question? नीचे वाला question दिख रहा है? Can you reply? Can somebody reply now itself? Yesterday we have seen this Newton's law of cooling. Quick answer. We have limited time. Anybody quickly? All right. Yesterday we have seen Newton's law of cooling is delta T only. Rate of cooling delta T by it is directly proportional to excess temperature. यहाँ पे excess temperature theta दिया हुआ है, उसकी power 1. That was T minus Ts. तो power 1 है, तो N should be equal to 1. This is the answer. Excess temperature की power कितनी थी? 1 only. Delta theta is difference of temperature of body over the surrounding. Now, thermodynamic state variables, ये जो pressure which indicate the state of the gas or system are called thermodynamic state variables like pressure, volume, temperature, mass, density, etc. इनको
These physical quantities are called state variables. उस समय उस स्टेट पर कितना प्रेशर है, उसका वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, एंड सो ऑन. तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स है ना. एक तो एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं जो कि साइज दिखाते हैं. दे इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम. इफ द सिस्टम इज डिवाइडेड दे विल आल्सो गेट डिवाइडेड. सिस्टम को आधा कर दो, टू पार्ट्स में कर दो, तो मास भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, एनर्जी भी हाफ हो जाएगी. तो डिपेंड अपॉन द size of the system is called extensive variables. And intensive कौन से होते हैं? जो कि सिस्टम को डिवाइड करने से डिवाइड नहीं होते, है ना. फॉर एग्जांपल प्रेशर. सिस्टम को वॉल्यूम आधा कर दो, है ना, डिवाइड कर दो एज इट इज, तो प्रेशर रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम. सपोज वॉल्यूम हाफ कर दिया तो मास भी हाफ हो जाएगा. डेंसिटी इज न्यू मास अपॉन न्यू वॉल्यूम. दोनों हाफ हो गए तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो दे डजंट डिपेंड अपॉन द सैंपल साइज. इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना. तो सैंपल को छोटा कर दो तो ये प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज नहीं होते. तो समटाइम्स यू मे नीड इट, बट अदरवाइज दे आर जस्ट एज ए thermodynamic variables. You must remember the difference. If required, you can just write it. Now thermodynamic processes. So we are going to learn at least 4 major processes. Sir, can you scroll up for a bit? Okay, thank you, sir. Okay. So just a minute. Let me connect it with earphones. Sound quality will improve. Just a minute. Okay, earphones are connected, but they are not working. Okay, now connected. Okay. All right, now thermodynamic processes क्या होता है? If one of the variables is changing, है ना, suppose कुछ pressure change हो गया, है ना, तो our volume change हो गया, तो we say some thermodynamic process has occurred. Thermodynamic variable change होने से we say some process has occurred. तो main processes are isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric. देखो तीन आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक बोलेंगे, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक बोला जाता है, वॉल्यूम डजंट चेंज. और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल, है ना. थर्मल मींस टेम्परेचर से रिलेटेड है. तो तीन प्रोसेस तो ये हो गए. व्हाट अबाउट फोर्थ वन? आई टोल्ड फोर्थ वन में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और अलाउड टू कम आउट. तो दैट इज द फोर्थ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक वॉल्स होती, नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है उनकी. तो फोर्थ प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी. टू डिफाइन दीज प्रोसेसेस प्रॉपरली, सिस्टम में गैस और सिस्टम शुड, इनकी जो कंडीशंस हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए. सपोज प्रेशर जो है थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे प्रेशर मोर नीचे कम. तो ये कब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब डिस्टर्ब होती है? जब पिस्टन इज मूविंग वेरी फास्ट, है ना. एंड देन इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर नॉट देयर, तो दिस प्रोसेस आर नॉट, वी डोंट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स. आइडियल कंडीशंस होने से प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं. प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं होती. बट इफ यू वांट 100% रिजल्ट्स, तो इट शुड बी इक्विलिब्रियम होना चाहिए गैस थ्रू आउट, है ना. प्रेशर शुड बी सेम थ्रू आउट एंड एक्सटर्नल उससे भी बैलेंस होना चाहिए, है ना.
तो अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो स्लोली चेंज होना चाहिए, सो दैट इट इज इनसाइड इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्लोली चेंज होना चाहिए, है ना। बट दे आर हाइपोथेटिकल कंडीशंस, तो टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट सिस्टम शुड बी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए इट शुड बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी मीन्स नियरली स्टैटिक प्रोसेस, because it should get time to stabilize and to get the equilibrium condition. So this is a hypothetical situation. Nearly static condition में process has to be very slow, है ना, infinitely slow process such that system changes its variable so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium with its surroundings, है ना। एक्सीलरेटेड पिस्टन है जो कि होता ही है प्रैक्टिकली, है ना। इंजन में कंबशन होता है तो पिस्टन इज एक्सीलरेटेड आउटवर्ड, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर डिस्टर्ब। तो उसके लिए these various thermodynamic processes are will not be defined properly. तो इमेजिन किया गया है कि infinitely slow process in which variables बहुत स्लोली चेंज होना चाहिए। सपोज हमें यहाँ से P से P डैश अचीव करना है तो बहुत धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, चेंजेस शुड बी सो स्मॉल कि इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो उसके लिए बहुत स्लो चलना चाहिए। टेम्परेचर आल्सो टी डैश तक जाना है और टी से, तो वेरी स्लोली इट शुड गेट टाइम टू ट्रांसफर द हीट इनवर्ड और आउटवर्ड, है ना। टेम्परेचर शुड बी, इसका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से स्टेबलाइज हो जाए। तो दीज आर द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, है ना, क्योंकि थिंग्स विल नॉट वर्क बट थियरी विल वर्क हियर। थियरी के 100% रिजल्ट होंगे, and if it is not quasi-static process is not achieved, but engine will work, but our calculated result will be decreasing, efficiency will be less, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कम आएगी, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल quasi-static process. Theoretically point of view से the scientists assume that it is quasi-static process and 100% results are obtained. ओके तो ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, ये नोट डाउन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मेन प्रोसेसेस। ओके, एक और साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक का मीनिंग इज वेरी क्लियर। इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी थ्रू एनी प्रोसेस एंड कम बैक टू ए थ्रू एनी अदर प्रोसेस, बट कमिंग बैक टू द इनिशियल स्टेट इज इंपॉर्टेंट, तो साइक्लिक हो गया, क्लोज साइकिल बन गया है ना। It can be many more process also, like this also. It can be like this also. Arrows can be clockwise also, है ना। तो system returns to its initial state since internal energy is the state variable. यहाँ पे वापस T टेम्परेचर से चले, T1 से T2 पे गए, फिर वापस T1 आ गया, तो no change of temperature, तो no change of internal energy. Internal energy is the purely dependent upon the time, I mean temperature. क्या था, NCV delta T था, तो NCV T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 T2 भी T1 हो गया, तो डेल्टा U इज 0, तो नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। वर्क डन निकालना है तो हीट सप्लाइड निकाल लो, या हीट सप्लाइड दिया है तो उतना ही वर्क डन होगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस, ओके, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। Previous question which we did day before yesterday, देखो, going back to this question, can you see this question? इसमें मैंने लिख दिया है, it is coming back to D again,
यहाँ से आया यहाँ और यहाँ साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन निकाला था हमने. इफ आई आस्क यू heat supplied, so that will also be 450 joules in the complete cycle. All the three process put together, heat supplied is 450 joules. Because if system comes back to D itself, D से start होकर D पे आ गया, तो change of energy will be 0. All the heat supplied will be equal to work done. That will be 450 work done हमने निकाला. ठीक है. तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है, इट कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट, जैसे इसमें भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया. All the heat supplied will be equal to वर्क डन. वर्क डन निकलना आसान होता है एरिया से, तो हीट सप्लाइड भी उसमें आ जाती है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो दिस इज द एडिशनल पॉइंट यू गॉट, कभी भी यूज हो सकता है आपका. टुडे इटसेल्फ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में भी तो यही होता है, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है और ऑल द इंटर एनर्जी चेंज होती नहीं. उसमें भी आइसोथर्मल प्रोसेस में भी सेम कंडीशन विल बी देयर, नो चेंज ऑफ इंटर एनर्जी. वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. हीट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम वर्क डन के बराबर होगी. तो वन ऑफ द प्रोसेसेस विल हैव सेम कंडीशंस व्हिच इज कॉल्ड आइसोथर्मल. नाउ सबसे पहले आइसो, अभी नाउ वी आर स्टार्टिंग द ऑल फोर मेन प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. ये तुमने एक क्लोज सिलेंडर ले लिया और उसमें गैस को हीट किया, it is volume is not going up or going down, the change of volume is 0. So no work is done in this, no work is done on the system or by the system. On and by दोनों 0 है. No work is done because volume is not changing. V1 is equal to V2, delta V is 0. Using the first law of thermodynamics, तो work done वाला point 0 हो गया, PdV, and work done is PdV, इसलिए 0 होगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. All the heat given goes on to change the internal energy of the gas. जितनी हीट देंगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. वर्क तो हो ही नहीं रहा है. इसका ग्राफ कैसा होगा? P and V. PV is equal to nRT और वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है. वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. If you supply the heat, pressure will be going up. If you take out the heat, pressure will come down, arrow will be coming down. देखो, PV, since PV is equal to nRT, volume is constant. We will have the equation P directly proportional to T. ये भी constant, ये भी constant, ये भी constant. T को नीचे शिफ्ट कर दो, P by T is constant. न्यूमेरिकल्स के लिए P1 by T1 is equal to P2 by T2. And heat supplied is equal to change of internal energy. Or change of internal energy is NCV delta T. So if you want to find out how much heat is given in the system, so that is equal to change of internal energy, which has the formula NCV delta T. All right. देखो, one interesting question is there. PT diagram for ideal gas is given. PT diagram is given. Pressure temperature diagram for ideal gas is given. Find work done from A to B.
Can you guess the answer? जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ओरिजिन से जा रहा है. It means what? It means what? Anybody can get the T is answer? directly proportional to T. T directly proportional to T. It means that is बोलो आंसर अभी. वर्क डन कितना होगा? No work is done. Okay, very correct. That is V constant. PV is equal to nRT. If P is directly proportional to T, अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था. V is constant, already two are constant. V constant, therefore delta V is 0. Therefore, work done is 0. है ना? तो don't keep on calculating area. यहाँ से area ऐसा area नहीं करें. They will give you the value corresponding to A, corresponding to B. Both the values will be given. तो why don't? अभी तो हमने पढ़ा था लेकिन area gives the work done. What was that? What was that? Area gives the work done. Why not here? What is the difference? That was PV diagram. This is PT diagram. यहाँ पे देखो PV diagram. No area is enclosed. यहाँ से देखो इधर drop करो volume axis पे, ऊपर से perpendicular drop करो, volume is no change of volume. तो PV diagram will give you the area of the PV diagram will give you the work done always, not the other. Other की कोई guarantee नहीं है. So don't find out the area every time. यहाँ पे area से तुम्हें कुछ और मिलेगा, and not the work done. So here work done is 0. So this can be important question. It is given in the books. All right. So this you just remember. You may be asked this question. All right. Moving on to the next one. Another is isobaric process. As I told you, bar is the unit of pressure. It has to be the constant pressure process. Bar जो है pressure की unit है. 1 bar is how much? 10 to the power 5 pascals as a unit. So pressure remains constant. If anything remains constant, its change will be 0. And ideal gas equation PV is equal to nRT. So P constant, N constant, R constant. So V directly proportional to T from this equation. So V by T is constant. Numericals के लिए V1 by T1 is equal to V2 by T2 कर सकते हैं if required. Now, if you give the heat, so this pressure is constant. I told you यहाँ पे 1 atmosphere plus जो भी weight piston का जो weight होगा उतना plus हो जाएगा. But whatever is there, it's remaining constant. If you keep यहाँ पे lead brick रख दो यहाँ पे. Now pressure will go up. Leads are heavy. Pressure will become more, but will be constant again. If pressure will increase, but it will be constant again. So you can increase the pressure by putting lead shots here or some weight here. You may think it may compress. No, you keep on giving the heat. It may compress. If pressure of the gas is less, you are putting the more weight here, it may come down and get settled somewhere here. फिर heat देंगे. If when sufficient heat is there, it will push it outward. All right. So pressure constant of the PV diagram कैसे आएगा? Initial also pressure same. After some, if volume goes up, then also pressure same, constant रहेगा. और VT diagram में, but generally PV diagram को indicator diagram भी बोलते हैं. Indicator diagrams because they are the standard diagram. और other diagram can also be there. Since P देखो यहाँ से V directly proportional to T है, तो ऐसा ग्राफ आएगा. तो ये VT diagram from since V directly proportional to T. But these are the main diagrams. This gives the work done. Area under the pressure volume graph gives the work done.
Alright. So work done can be found out easily because pressure remaining constant. So you don't have to do the integration. P constant ही देखो यहाँ पर चेंज ऑफ वॉल्यूम सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए V1 V2 तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम एंड सिंस PV इज इक्वल टू NRT तो यहाँ पर क्या होगा T2 जब वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 तो NR is coming out T2 minus T1 and N is the number of moles R is 8.314 universal gas constant और T2 T1 जो है टेम्परेचर दिए होंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर है तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन 273 दोनों में ऐड हो जाएगा बाद में सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्टली यू कैन पुट द चेंज ऑफ टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो गया पुट इट 10 डायरेक्टली है ना इसको NR डेल्टा T लिख सकते हैं एंड हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर पर CP आता है उसमें this is for 1 mole and number of moles and this is also for 1 unit change of temperature तो total change of temperature से मल्टीप्लाई कर दिया तो आइसोबारिक प्रोसेस में heat total heat will be NCP delta T ऑलराइट तो वर्क डन मिल गया यहाँ से और हीट सप्लाइड का फार्मूला पता है तो चेंज ऑफ इंटरनल निकाल सकते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं Q is equal to change of energy plus work done. Work done is known from this formula. Q is known from this. Change of energy can be obtained. या CV पता है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं NCV डेल्टा T से निकाल सकते हैं या फिर डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी से निकाल सकते हैं ऑलराइट आइसोबारिक प्रोसेस में सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर लेट मी आस्क यू that most important question of this topic देखो okay this is also important उससे पहले ये वाला important question है देखो find the ratio of change of internal energy and heat supplied at the constant pressure process isobaric process or this question can be asked like this what fraction of heat supplied at constant pressure goes on to change its internal energy हमने मतलब फ्रैक्शन निकालना है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट सप्लाइड तो रेशियो निकालना है ना व्हाट विल बी द रेशियो बोलो कैन वी सॉल्व इट हियर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट सप्लाइड अभी दोनों पॉइंट बताए थे मैंने डेल्टा यू कितना लिखे बोलो क्विकली इट इज NCV डेल्टा टी NCV delta T. और डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए बनेगा क्वेश्चन दूसरे प्रोसेस के लिए नहीं बनता ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कितनी होती कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है अभी ऊपर लिखा था हमने NCP डेल्टा टी दिस इज CV by CP दिस इज नथिंग बट ए रेशो को क्या बोलते हैं गामा Gamma. बट CP ऊपर होना चाहिए तो ये 1 by गामा CP होना चाहिए ऊपर तो गामा इज द एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक इंडेक्स इसकी वैल्यू जो है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होती लास्ट में नेक्स्ट चैप्टर में है बट जनरल आंसर इज गामा so it can have 3 questions if gas is monoatomic then ratio will be different polyatomic के लिए different and diatomic के लिए different ऐसे ही तुमको वर्क डन का पूछ सकते हैं वर्क डन होगा यहाँ पर तो दैट विल बी ओके वर्क डन का कैसे आएगा देखो इट कैन दिस क्वेश्चन कैन हैव मेनी फॉर्म्स वर्क डन में क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू माइनस चेंज ऑफ इंटरनल तो 1 माइनस गामा आ जाएगा ना वर्क डन यस सर ओके यहाँ पे सेकंड पार्ट में कर लेते चलो
ratio of find ratio of work done and change heat supplied, work done and heat supplied at constant in this process, केवल एक ही प्रोसेस के लिए है, दूसरे प्रोसेस के लिए नहीं। तो क्या आएगा देखो, तो वर्क डन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से चेंज कर लो, वर्क डन इज हीट सप्लाइड माइनस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट सप्लाइड, तो 1 माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, दिस विल बी 1 माइनस 1 बाय गामा। जितनी वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस, देखो ये जो है इतना पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और उसमें से 1 में से माइनस कर दो, बाकी फ्रैक्शन उसका वर्क डन हो जाएगा। दैट मच फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, रिमेनिंग फ्रैक्शन इज डूइंग द वर्क। तो गामा शुड बी नोन, आगे मैं टेबल बना के गामा की वैल्यू दे दूंगा, तो यू विल जस्ट रिमेम्बर गामा किसका कितना है। डू यू नो केमिस्ट्री में है ऑक्सीजन का गामा कितना होता है, डायटोमिक गैस का 7/5 1.4 होता है, ठीक है, विल लर्न इट लेटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन particularly in competitive examination, but normal वैसे भी important है ये, you should remember all these formulas. What about this question? ये क्वेश्चन देख लो नीचे यहाँ पे, can you see? Okay, I'm showing you again. Gamma is called adiabatic index. All right. Okay. This is also important question. देखो एक ही गैस है, only one gas is there. उसको हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया, डिफरेंट प्रेशर पे हीट किया। ये गैस है सपोज, पहले तुमने उसको हीट किया एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, फिर बाद में क्या किया, उसके ऊपर वेट रख दिया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, फिर हीट किया उसी को। तो 2 graphs आर फॉर वन गैस ओनली, विच वन इज ग्रेटर, P1 इज ग्रेटर और P2 इज ग्रेटर, ठीक है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। आइडियल गैस इज हीटेड at constant pressure at heated कर दो, at constant pressure P1, then at P2, for which velocity, I mean volume time graph is shown, VT graph is shown, find which pressure is more. Which pressure is more, P1 is more or P2 is more? Which pressure is higher? तो देखो इसको जस्ट यू कैन डू इट योर ओन, है, इसको सॉल्व करके भेजो, आफ्टरनून में वील डिस्कस दिस। इसको तुम स्लोप से समझ सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू यूज द स्लोप, कॉमन सेंस से समझ सकते हो। वन यू डू वन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, कीप वन ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो, P2 के लिए टेम्परेचर कम है और P1 के लिए टेम्परेचर मोर है, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, है ना, और P1 के लिए वॉल्यूम कम है, P2 के लिए वॉल्यूम मोर है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इंटरप्रेट कर लो, या फिर हम लोग V एंड T का स्लोप देख लेंगे, स्लोप से हमें आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर होगा। बट दिस इज गुड क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव यू फर्दर बेटर क्वेश्चन विदाउट मैथमेटिकल नॉलेज, यू कैन जस्ट डू इट, नहीं तो उसमें बहुत इक्वेशन बनानी पड़ती है। अच्छा ये चलो ठीक है, इसमें देखो बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, यू नो, और इसको ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ओके ऐसा कर दिया,
तो both when extended are passing through origin, but इसमें ऐसा है, extended is not passing through the origin. तो is okay, यहाँ sorry यहाँ पे क्या होना चाहिए, v होना चाहिए. सेम टर्म्स, यहाँ पे v और यहाँ पे t. इसमें ओरिजिन से नहीं जा रहा है, इसको एक्सटेंड किया हमने, देखो इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्या? इफ आई आस्क यू इज द प्रेशर कांस्टेंट हियर, तो दिस क्वेश्चन विल बी आफ्टर दिस. व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज पेंडिंग इन आफ्टरनून. सॉल्व करके भेजो, लेट मी सी व्हाट्स योर आंसर. आफ्टरनून सेम टाइमिंग है जो कल की थी, 2:25 and link will be sent to you, or old link, it will be decided after the class. Third one is isothermal process. है ना? तो thermal, isothermal means constant temperature. ना? By the main name itself you can find iso means same, thermal means temperature. यहाँ पे temperature की meaning, temperature remains constant, T is constant, therefore change in temperature is not there, zero. And since PV is equal to nRT, तो ये राइट वाले टर्म्स तीनों कांस्टेंट हो गए. तो PV is equal to कांस्टेंट. तो इसका ग्राफ देखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है ना, P inversely proportional to V. Reciprocal function is always curved and decreasing and not intersecting to the x and y axis. हमेशा ये. तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो ये आइसोथर्म ऊपर जाएगा. We call it isotherm. और ऊपर क्यों जाएगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन है, अभी मैंने बताया ना. ऐसे उसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा टेम्परेचर मोर होगा बाय यूजिंग द PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट. प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कम है, सेकंड वाले में वॉल्यूम ज्यादा है. तो वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी मोर होगा, है ना. तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि विच. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आइसोथर्म से ऊपर जाते हैं. ऑलराइट, तो ये तो हो गया तुम्हारा PV डायग्राम. अभी हमें वर्क डन निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा. नाउ एरिया निकालना बहुत मुश्किल काम है, कर्व लाइन का एरिया निकालना बहुत मुश्किल काम है. तो देखते हैं वर्क डन का, बाद में फोकस करते हैं. नाउ इसमें देखो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, देखो NCV डेल्टा T, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, change of internal energy is zero because no change of temperature. So whatever heat is supplied is reflected in the form of work. तो वर्क निकालेंगे तो हीट मिल जाएगी. There is no other way to get the heat supplied. ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं लिख सकते NCV डेल्टा T. ये किसके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. और ये भी नहीं लिख सकते NCP डेल्टा T. ये किसके लिए, जब प्रेशर कांस्टेंट है. But neither volume is constant, not pressure is constant. Both are changing. So we have to depend upon the work. That much will be heat supplied. But how to get the work? वो आगे निकालते हैं. This is work done is a very important derivation of the textbook. उससे पहले find molar specific heat of the gas in isothermal process. Can you predict how much will be the molar specific heat? हमने CP की तो constant pressure की निकाली, कांस्टेंट वॉल्यूम की भी डिफाइन की है, आइसोथर्मल की क्यों नहीं डिफाइन की, बताओ कितनी होगी. यू कैलकुलेट, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड. देखते कितनी होगी. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, C should be, it is heat supplied per unit मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे हमने सिंबल C लिखा है. We cannot write CP or CV because they are the different processes. So now बोलो, अभी क्लू मिल गया, क्या आंसर है बोलो. Since delta T is zero, so C is infinitive. Infinite. Temperature बढ़ ही नहीं रहा, you keep giving heat
in order to get the one Kelvin rise, but it will never happen, है ना? If temperature बढ़ गया तो it is no more isothermal process. तो infinite. Theoretically we can say इसकी molar specific heat is infinite. As I told you beginning of that molar specific heat, it can range from 0 to infinite. ठीक है, तो डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है. If you put it 0 here, whole things will be infinite. So sometimes you may come across this point. It is not given in your textbook, but you should. Now coming to the work done in isothermal process. ये हमें heat supplied निकालनी है तो work done निकालना ही पड़ेगा. बोलो, can anybody tell how to get the work done? चलो, important है और very important है derivation. It is frequently asked. Subjective. बोलो. Let us start it quickly without losing time. बोलो. Always work done निकालने के लिए first step should be PdV, है ना? तो कितना प्रेशर पुट कर दे, अभी क्या करें आगे बताओ. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ट्राई करो, जस्ट डू इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर forthcoming examinations. Okay, ideal gas isothermal की इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT. तो P की वैल्यू यहां से पुट कर सकते थे. P की वैल्यू यहां से पुट कर दो. ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू nRT by VdV. What next? वेरिएबल है, प्रेशर इज कमिंग डाउन. ऐसे ग्राफ है, देखो. ओके, ये ग्राफ है. यहाँ पर तुमने क्या किया, वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग प्रेशर P लिखा और इंटीग्रेट V1 टू V2. तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर निकाल लो. अच्छा, यहाँ पे dV लिखना पड़ता है हमने स्मॉल वर्क डन के लिए. ठीक है, तो इसमें देखो डेरिवेशन जब करते हैं ना, इंट्रोड्यूस करो. लेट n बी द नंबर ऑफ मोल्स एंड और क्या टर्म्स हैं, V तो चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम T इज द टेम्परेचर, वो जो कांस्टेंट है. वॉल्यूम V1 टू V2 चेंज हो रहा है ना. प्रेशर कितना हो जाएगा? चलो प्रेशर के टर्म में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको. तो ये V1 टू V2. ठीक है, बस बोलो अभी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बता दो जल्दी से. nRT कांस्टेंट है कि नहीं? बाहर आ गया. बचा क्या? V1 टू V2 लिमिट 1 अपॉन VdV. दैट्स ऑल. बोलो फाइनल आंसर. 1 बाई एक्स का क्या होगा? log x अपर Log लिमिट x. V2, तो ln V2 बाई V1. ठीक है, प्रेशर के टर्म में रिवर्स हो जाएगा. P1. ओके, प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करना है तो एक मिनट रुक जाओ. देखो, अभी मैं बोलूं कि वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गया है ना, तो ln कितना आएगा? ln 10 की वैल्यू कितनी होगी? टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो दिया होगा. नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, R दिया होगा. तो वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गया, तो ln 10 कितना होता है? उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के लिए. तो दैट इज 2.303 303. nRT log बेस 10 V2 बाई V1. अभी हमारा टेबल इसमें देख सकते हैं. log 10 की वैल्यू 1 होगी. log 10 की वैल्यू 1 होगी. log 100 की वैल्यू कितनी होगी? कॉमन लॉग 2. हाँ, तो 2 होती. तो ये अभी इसकी वैल्यू हमें पता भी होती है या टेबल भी दी होती है? ये तो इंटीग्रेशन में नेचुरल लॉग आता है. कन्वर्जन फैक्टर 2.3, इसको छोड़ दो. चलो 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। log 1 is 0, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is, जितनी पावर है 10 की उतना ही वैल्यू आती है। 10 की पावर 1 है तो 1 आएगी, 10 की पावर 2 है तो 2 आएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और प्रेशर के टर्म में इनवर्स है, देखो सिंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर कांस्टेंट इक्वेशन लिखी थी क्या? हमने नहीं लिखी क्या? यहाँ से देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं, राइट साइड की कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? V2 by V1 कितना मिलेगा? एक मिनट, P2 को इधर भेज दो, P1 यहाँ पर है और P2 यहाँ पर है, V2 by V1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा? P1 by P2 बन जाएगा। ln P1 by P2 बोल सकते हैं प्रूव करो P1 by P, ये प्रूव करो। तो पहले तो यही करना पड़ेगा, बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यू हैव टू प्रूव इट, दिस इज द मेन डेरिवेशन। यू कैन जस्ट स्टॉप हियर इटसेल्फ। आगे के पॉइंट हमने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किए, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। क्लोज हियर डेरिवेशन, यू क्लोज हियर, you can just save your time after closing it. All right, further points are for numerical point of view. Some more important points of isothermal process will continue. उसके बाद last process रहेगा। Afternoon में we'll try to finish this chapter. Tomorrow we will start kinetic theory of gases. वो भी हीट का ही है, तो वो भी देखते कल आफ्टरनून में। कल नहीं है ना। Tomorrow last 10 minutes we will have the 5 questions of fluids. शॉर्ट टेस्ट रहेगा 10 मिनट का केवल। क्लियर? फ्लूइड्स के रिवाइज कर लो, फॉर्मूले देख लो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है उससे, रिवीजन और टेस्ट देने से। तो लास्ट 10 मिनट्स वी विल जस्ट हैव द 5 क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव। इट वाज अनाउंस्ड अर्लियर आल्सो, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस डन, वर्क डन। स्लोप जो है, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूँ इसमें। स्लोप देखो, स्लोप जो है dy/dx को स्लोप बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर y एक्सिस पे इंडिकेटर डायग्राम जो है ना, वहां पे p एंड v है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? स्लोप dp/dv हो जाएगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करना नहीं है अभी तुम्हें, तो pv इज इक्वल टू nRT, कांस्टेंट है ना। pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। राइट साइड में कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो यहाँ से हमें dp/dv मिल गया, विच इज माइनस p/v। तो स्लोप हो गया माइनस p/v। ठीक है, तो देखो वही सीक्वेंस है। देखो डी, यहाँ पे dp है तो ऊपर p आ रहा है, और यहाँ पे v है, dv है तो v आ रहा है। तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। और निगेटिव क्यों है? देखो ऐसा कर्व आता है, जस्ट रिकॉल करो ग्राफ को, ऐसा है। तो स्लोप यहाँ पर देखो कुछ और है निगेटिव मोर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे कम हो गया देखो नीचे पे, बट इन एवरी केस इट इज निगेटिव। स्लोप में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो यहाँ पर ये एंगल देखो, जिस पॉइंट पे चाहिए इट इज डिक्रीजिंग स्लोप, है ना, ऐसे चेंजिंग स्लोप है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे 90 की तरफ बढ़ते हैं तो मोर स्लोप होता है, ऐसा। ये हॉरिजॉन्टल का 0 स्लोप होता है, वर्टिकल का 90 होता है। वर्टिकल होगा नहीं, बट इट विल बी क्लोज टू वर्टिकल 9, है ना, ऐसा। यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप है देखो, ऐसा 90 की तरफ जा रहा है। हॉरिजॉन्टल का 0 होता है। whether you approach from negative side or positive side, more vertical you become, more slope it is, है ना। जैसे इंक्लाइंड प्लेन का सोचो, ये स्लोप इसका मोर है, और बढ़ा सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। चाहे वो इधर से देखो,
ये स्लोप है उसका, यहाँ से स्लाइडिंग कुछ है गार्डन का जो वो, तो ये ज्यादा स्लोप ही है ना, ज्यादा एंगल है उसका, चाहे वो देखो इधर से देखो चाहे इधर से देखो, मोर 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेंगे मोर स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इसका आइसोथर्मल का माइनस पी बाई वी। यहाँ से बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। डू यू रिमेम्बर द बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस जो है बी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी अपॉन वी। तो वी को इधर भेज दो। तो ये डी अभी हमने डीपी बाई डी वी डिस्कस किया, माइनस पी बाई वी इंटू वी। तो वी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर in the isothermal process. This relation, we need it in the chapter of sound waves. And otherwise, it is important for competitive examination और normal तुम्हारे उसके लिए, subjective के लिए भी important है, because both the topics are in our course. Bulk modulus है, तो bulk modulus of gas is equal to pressure, which is variable. It is not constant. यहाँ पर pressure more है, यहाँ पर pressure more है, यहाँ पे कम है. So whatever pressure is given at that moment, that much will be the bulk modulus in isothermal process. Comfortable up to here? These are the extra question. ये भी extra में लिख सकते हैं, because slope वाला part तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो unlikely to be asked, but I don't know how much is taught to you in the class. Next one is adiabatic process. Adiabatic walls पढ़ा था हम लोगों ने. Adiabatic means non-conducting. तो जब non-conducting walls होंगी, neither heat will enter nor it will come out of the system. So heat transfer is zero. That process, in adiabatic process, the system is insulated from the surroundings and heat absorbed or released is zero. Q or delta Q is zero. So from first law of thermodynamics, delta Q zero put कर देंगे, तो हमें वर्क डन कितना मिलेगा? इसको दूसरी तरफ भेज दो, माइनस हो जाएगा. तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. It means work will be done. Heat nahi supply and no problem. Work can be done, but from where the energy will come? It will come from the internal energy. Internal energy will decrease that much. Suppose 100 joule work हो गया, तो internal energy will drop by 100. Suppose पहले 1000 internal energy है, work done is 100 joule, so it will decrease by 100. It will become 900 joules. ठीक है? तो work is done at the cost of internal energy. So internal energy provides the energy for work done that will decrease by that amount. एडियाबेटिक प्रोसेस देखा तुम लोगों ने घर में? थर्मस फ्लास्क होता है ना, उसको उसमें टी रख दो, कॉफी रख दो, हॉट कॉफी, नो हीट ट्रांसफर, बट उसमें वर्क डन नहीं करा सकते, बिकॉज उसका जो है पिस्टन नहीं है उसमें, है ना. अगर मूवेबल पिस्टन है तो वर्क कैन बी डन. बस्टिंग ऑफ टायर, साइकिल का टायर या टू बाइक का टायर, कभी बस्ट साइकिल के बस्ट होते हैं, टू व्हीलर के तो नहीं दिखते हैं ना. साइकिल का टायर तुमने चलाई होगी, सडनली बस्ट हो गया, टू टच दैट वेयर जहां पर बस्ट हुआ है, तो वहां पे इट बिकम्स कूल. तो सडन एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप्स. It is adiabatic process, sudden expansion, temperature drops. So you can do this experiment. I'll show you कैसे एक्सपेरिमेंट करना है. साइकिल का टायर बस्ट नहीं करना है, with your mouth you can do it. टेम्परेचर कैसे ड्रॉप हो रहा है by blowing the air. We'll see later. पहले ये कंप्लीट करते हैं. वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. इसका जो वो है इक्वेशन, इट इज समथिंग डिफरेंट. इसका डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, you don't have to derive it.
PV to the power gamma is equal to constant. P is the pressure, V is the volume, and gamma is the gamma क्या है? Adiabatic index होता है, और which is ratio of Cp by Cv. So let me have this equation. इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, important. Okay, ठीक है. So this is the one of the equations. Ideal gas equation से तुम इसको चेंज कर सकते हो, but most commonly used equation ये है. तो ये गामा देखो, गामा कैन बी 1. अच्छा 1 हो गया गामा. गामा ऑफ कोर्स 1 होता नहीं है, बट एक थोड़ी देर गामा कांस्टेंट है. इट इज कांस्टेंट, जो है वो रहेगा मोनोएटॉमिक. इट इज ऑलवेज मोर देन 1. गामा इज ऑलवेज गामा इज ग्रेटर देन 1. इट इज नॉट 1. 1 हो गया तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? पीवी इज इक्वल टू आइसोथर्मल इक्वेशन बन जाएगी, है ना. बट उसके लाइंस पर हम सोच सकते हैं कि 1 is also constant, 1.5 is also constant, 2 is also constant. So graph will be more or less similar to the isothermal. But isothermal से इसका एंगल स्लोप ज्यादा होता है. अगर ये isothermal है तो उसके नीचे रहेगा एक्सपेंशन में. स्लोप इज मोर स्लोप लिख सकते हैं. इट हैज मोर स्लोप देन. अच्छा स्लोप अभी हमने डिस्कस नहीं किया इसका. विल सी व्हाई स्लोप इज मोर, बट मोर और लेस इट लुक्स लाइक isothermal प्रोसेस, है ना. तो गामा कांस्टेंट है. इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियल, इसको कर्व उसमें, ठीक है. तो इट इज लुकिंग लाइक आइसोथर्मल कर्व, बट इट इज नॉट, बिकॉज हमने स्लोप ज्यादा बनाया, इसका मोर वर्टिकल बनाया. ठीक है, यहाँ तक थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन एंड ग्राफ बोथ आर important, and this point is also useful. Work is at cost of internal energy. Or we are talking about PV diagram always. Other diagram के लिए you have to just think and draw it. देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन आल्सो. देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन. यहाँ पे एक प्रोसेस ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 22.3 जूल ऑन द सिस्टम. ऑन है ना, मैंने बताया था ऑन है. एन है इसमें, एन नेगेटिव होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव. मतलब तुम उसको प्रेस कर रहे हो सिस्टम को. तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, ठीक है. कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है. चलिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम के ऊपर तुमने वर्क किया, तुमने उसको प्रेस किया अंदर की तरफ, है ना. ऑलराइट, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या क्लू मिल गया? यहाँ से क्लू लेते हैं. देखो सिंस, ओके नीचे लिखो, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना, और डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू. और वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क ऑन हो रहा है ना, यहाँ पे ऑन था वर्क, ऑन द सिस्टम है, इसलिए नेगेटिव. तो माइनस ऑफ माइनस 22.3 जूल्स, दैट्स प्लस. Now, if the gas is taken from A to B via other process, ऐसे लिखेगा उसको, via process in which the net heat absorbed by the system is 9.35. So in other process, delta Q is 9.35 calorie, or 1 calorie is 4.19. So multiplied, put together will give you 39.2 joules. ठीक है. अभी चेंज ऑफ एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, किसी भी पास से जाओ इट रिमेन सेम, इट इज नोन. तो इसमें पूछा क्या है? हाउ मच इज द वर्क डन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी प्लस वर्क डन. हीट सप्लाइड इज 39.2, चेंज ऑफ एनर्जी ये ऊपर कैलकुलेट की है 22.3 प्लस डब्ल्यू,
if you subtract W will be 16.9 joules. Answer is 16.9 joules. So this is good question. देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का में ये रिलेशन पता होगा तभी कर सकते हैं ना. Indirectly change of energy is given by giving you the work done. So it is somewhat similar to the question given in homework जो आज हमने beginning of the class discuss किया था, वैसा ही question है but more indirectly given things. तो important mark कर दो इसको. This is also important question. ये solve करो, भेजो ये question. Important everywhere. Solving is the technique here. Solving is mathematical calculations इसमें तुम्हें आने चाहिए, otherwise no problem. कौन सी equation है adiabatic process में? PV to the power gamma is equal to constant, है ना? तो PV to the power gamma is equal to constant को कैसे numerical में use करेंगे? P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma. बस इसमें value put करके solve कर लो. Only solving is the issue, otherwise it is direct formula based question, but it is important. आशा है ये. All right. Okay. Things are okay. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done. तो ये भी ट्राई करो. विल वेरी इंपॉर्टेंट. विल डिस्कस. देखो कभी कभी इसके दूसरे रिलेशन भी हमें दिखते हैं बुक्स में. What are the other two relations which are there in the book? देखो other relations can be this. देखो PV is equal to nRT. नहीं सॉरी PV to the power gamma is equal to constant. अभी हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन 1. ठीक है. Using the ideal gas equation PV is equal to nRT, we can put the value of P here. V को नीचे शिफ्ट कर दो. P is equal to nRT by V, and this value we will put it here. यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आ गया nRT by V. यहाँ भी V है, इस पर गामा है, तो ये ऊपर शिफ्ट कर दो, -1 हो जाएगा. और देखो ये T बचेगा, ये तो कांस्टेंट है. इट विल कम दिस साइड, विल मेक अदर कांस्टेंट. तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कैसे करते हैं इसको? T1 V1 to the power gamma -1, T2 V2 to the power gamma -1. इसके भी न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत दिखते हैं. जैसा मैंने ये दिया है ना, वैसे ही सॉल्विंग टेक्निक इज देयर. पावर को कैसे डील करना है ना. सपोज तुम्हारी पावर 1.5 आई, तो उसको कैसे डील करना है. या 0.4 है. 0.4 पावर कितनी होती? चलो इसमें जैसे डायटोमिक गैस है इस इक्वेशन में, तो 1.4 - 1 will be 0.4. Without using the table, can we get the 0.4 का? 0.4 कितना? Let us see. 0.4 ये हो जाएगा 4/10, 2/5, है ना. तो उसको तुम्हें वैल्यू ऐसी दी होंगी. वॉल्यूम 32 टाइम्स हो गया. 32 का 1/5 कितना होता है? 2/5 निकालना है, तो 5th रूट ले लो पहले. 5th रूट 32 का 5th रूट कितना होगा? 2. फिर स्क्वायर कर दो, 4 आ जाएगा. थिंग्स विल बी गिवन इन विच 5th रूट आ जाए या 4th रूट आ जाए. पर्टिकुलरली डायटोमिक में 1.4 0.4 होता है, दैट इज 2/5. तो आई हैव सीन द क्वेश्चन इन जेई एंड ऑल. उसमें वो रूट तुम्हें, यू डोंट नीड द टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. तो वॉल्यूम या जो भी है, जैसे वॉल्यूम पहले इतना था, बाद में इतना हो गया ना, तो विदाउट टेबल यू कैन सॉल्व इट. Similarly, if we replace V now, आइडियल गैस इक्वेशन से V की वैल्यू पुट कर दे nRT by P. तो पुट इट हियर. V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो. दिस कम्स हियर. इसमें देखो P एक डिनोमिनेटर में भी है, पावर गामा, तो न्यूमिनेटर में आएगा, माइनस गामा हो जाएगा, और T की पावर गामा रहेगा. बाकी NR विल गो टू द अदर साइड. इसको भी न्यूमेरिकल्स के लिए
राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हटा के P2 1 माइनस गामा T2 गामा, तो न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों साइड में लिखना पड़ता है। तो दीज आर द अदर इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस मोस्टली दिखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। TV to the power gamma minus 1, ठीक है। So these are the other form of the equations of adiabatic process only. First one being this, which is main, और ये भी तीनों इक्वेशन सामने है। Derivation is not there of any of them. डेरिवेशन करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो इसका डेरिवेशन अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, वो वर्क डन वाला था ना, चेंज ऑफ इंटरवल, वर्क डन को पीडीवी लिख सकते हैं, इंटरएनर्जी को एनसीवी डेल्टा, इसको क्या लिख सकते। ओके, ये इसमें चेंजेस करके लाना पड़ता है, अभी जस्ट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट। आई विल टेल यू हाउ टू गेट दिस रिलेशन, by which equation we are using and getting this relation for your interest. Okay, just we'll wind up in next 2-3 minutes. हाँ, work done in adiabatic process कैसे निकालना है, ये derivation भी important है in for your final examinations। ये frequently आप दोनों में से एक derivation आ सकता है। Can we complete? Let me see इसके बाद से। Okay, work done का ये ठीक है, देखते हैं आफ्टर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन देंगे, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, यू ट्राई करो, यू ट्राई इन द होमवर्क, आई विल कंप्लीट लेटर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड हिंट। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स and gamma is the adiabatic index and so on. P initial volume is initial temperature, P1 is the initial pressure, P1 V1 initial pressure and volume, P2 V2 final pressure and volume, T1 and T2 initial and final temperature, ठीक है। Introduction to you have to give, otherwise half marks will be cut. What next? Okay, work done is PdV. Okay, एक पॉइंट और यहाँ पर देखो, इक्वेशन क्या है अपनी, PV to the power gamma is equal to constant, इसको K लिख लेते हैं, है ना, and same K will be equal to, okay, P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma is equal to K, therefore ऐसा। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट तो हमें 1 पॉइंट इज रिक्वायर्ड, ये हम बाद में यूज करेंगे, बट यहाँ से हमें वॉल्यूम, ओके, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, ओके, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज पीडीवी, वेरिएबल है, देखो यहाँ भी ऐसा करवा रहा है ना, यहाँ पे हम V ले लेंगे corresponding to P, V1 to V2, similar to the isothermal process, बट यहाँ पर टर्म्स अलग आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंट आएगा। तो P की वैल्यू क्या पुट करें, बोलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू यहाँ से पुट करो, P इज इक्वल टू K अपॉन V को इधर लाएंगे तो V टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है, ये V नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, V टू द पावर गामा, फिर ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस गामा, ठीक है, बस वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, दैट्स ऑल। K बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, ओके, K को बाहर ही निकाल, ओके, पहले वैल्यू पुट करते हैं V टू द पावर माइनस गामा dV। नाउ गामा हैज कम, K हैज कम आउट, बस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n वाला, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, माइनस गामा प्लस 1 ऊपर और नीचे भी माइनस गामा प्लस 1, ऑलराइट। यहाँ पे देखो x टू द पावर n
dx is h to the power n plus 1 upon n plus 1. This is the formula you have to apply. और जब k है ना बाहर, when you shift k inside, तो जो 1 वाले टर्म्स है उसके साथ k की वैल्यू ये पुट कर देना, जो 2 वाले टर्म्स है उसके साथ वैल्यू पुट कर देना, तो सब कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, कुछ ऐसा बचेगा तुम्हारे पास p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा कुछ रिलेशन आ जाएगा एंड में। और फिर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बाहर माइनस, ओके यहाँ पे 1 माइनस गामा आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं n, इसको nRT से nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा, गामा बड़ा होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है nr डेल्टा t गामा माइनस 1। तो आई विल ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, देन आई विल कंप्लीट आफ्टरनून में। ऑलराइट, एनी डिफिकल्टी अप टू सो फार? देखो वर्क डन के लिए हमें पीडीवी यूज करना है, वेरिएबल कंडीशन है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और एरिया एरिया भी नहीं निकाल सकते थे कर्व का, कर्व लाइन का एरिया निकालना मुश्किल होता है, तो यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। और नाउ सिंस यहाँ पर dv है, यहाँ पर p है, तो वी कैन डू द इंटीग्रेशन, p हैज टू बी चेंज इन द टर्म्स ऑफ v बिकॉज dv है, यहाँ पर अगर x होता है तो dx होना चाहिए, तो यहाँ पर p को v के टर्म में लाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से, ये मेन इक्वेशन होती है, v को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस गामा हो जाएगा, तो p की वैल्यू k v टू द पावर माइनस गामा dv, k इज कांस्टेंट बाहर निकाल के अभी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करके बाद में k को अंदर शिफ्ट करेंगे, ब्रैकेट में लिमिट भी लगा लेंगे, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, बट न्यूमेरिकल्स के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा nr डेल्टा t में। I can tell you one of the easiest method to get this, but it will not work. Alternate method मैं बता दूंगा कि just one line derivation, integration भी नहीं करना उसमें, but it will not work in your subjective paper. You have to do the way it is given in your textbook. ठीक है? Shall I stop it here? Time is over, and afternoon this chapter will be over. We will start other chapter. But इसमें अभी वर्क डन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, एंड ऑलमोस्ट ओवर हो गया, थोड़ा सा बाकी है बस। That's all. Any difficulties there, you can just ask.